Jai Hind everybody, welcome to biology class. So today we will discuss the last life process, that is excretion. Now the first thing is, what is excretion? What do you mean by excretion? So excretion, the removal of harmful waste from the body is called excretion. जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में होते हैं, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनका रिमूवल, उनका एक्सक्रीट करना उनको, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन. ना एक्सक्रीशन प्रोसेस इफ़ यू सी इन ह्यूमन बॉडी, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया. These two are the main excretory products, or you can say कि waste which is produced in our body. Now carbon dioxide कैसे produce होता है? It is produced by the oxidation of food during the process of respiration. जब respiration होता है और food का oxidation होता है, then carbon dioxide is liberated. That you have already seen when we were talking about the life process respiration. Okay, so carbon dioxide is it is produced as a waste during respiration. And then what about urea? So this urea is produced as a waste by the decomposition of unused proteins in the liver. ठीक है, जो भी अनयूज्ड प्रोटीन्स होते हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है लिवर में. जब डिकम्पोजिशन होता है तो उससे यूरिया प्रोड्यूस होता है, विच इज़ अगेन अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी. Okay, so these toxic substance they need a regular removal. उनको रेगुलर रिमूव होना चाहिए हमारी बॉडी से, क्योंकि अगर ये बॉडी में हमारे एक्यूमुलेट हो जाएंगे देन इट विल कॉज टॉक्सिसिटी. ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे हमारी बॉडी में, एंड इट मे ऑल्सो लीड टू द डेथ ऑफ अ पर्सन. सो मैनी टाइप्स ऑफ वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑल्सो. So now we will discuss about the human excretory system in detail. Now if you talk about human excretory system, now human excretory system it includes few parts. ये कुछ पार्ट से मिल के बना होता है. दैट इज, अगर हम बात करें तो अ पेयर ऑफ किडनी, दो किडनीज होती हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, अ पेयर ऑफ यूरेटर एंड वन यूरिथ्रा. सो दीज फोर parts they combine to form a human excretory system. As you can see in the figure, this is the figure of human excretory system. Now these two are the kidneys which are bean shaped. This is the ureter, again one pair ureter. Then you can see this is urinary bladder where the urine is collected. Okay, and this is urethra, the opening through which urine is passed. Now this is a renal artery and this is a renal vein. Okay, so through this vein the impure blood it comes out, and through artery it again, after purification, it goes from the kidney through renal artery. Now this is the structure of you can say a human excretory system. Now one by one we will take up all the different parts of human excretory system, and we'll be studying in detail. Now first let's start with kidney. Now the kidneys, the one pair of kidney is present in human beings. Okay, and they are bean in shaped and they lie near the vertebral column in of the abdominal cavity. ये हमारे vertebral column जो होता है उसके दोनों तरफ होते हैं, और यू कैन से एट द बैक, इसीलिए ये पीछे की तरफ प्रेजेंट होती हैं. ओके, नियर द vertebral column of the abdominal cavity. Now they are composed of many filtering units, and these units are known as nephrons. बहुत सारी millions of nephrons are present in kidney. If you see a enlarged view of kidney, it looks like something this. Okay, this is an enlarged view of one kidney I have shown you. Now this is the nephron which I am talking about. This is the functional unit of kidney.
ये नेफ्रॉन्स का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये जो किडनी है इसके दो पार्ट्स होते हैं, बाहर का पार्ट कॉर्टेक्स होता है और अंदर का पार्ट कहलाता है मेडुला। तो आप देख रहे हो ये इस तरह जो है कॉर्टेक्स पार्ट में ये ऊपर का पार्ट होता है, ओके, दैट सर्कुलर पोर्शन, और ये ट्यूब्यूल्स जो हैं ये कुछ पार्ट जो है ये मेडुला पार्ट में भी जाता है, ओके। और इसी में आपके ये रीनल आर्टरीज होती हैं एंड रीनल वेन्स, ये इसी से कनेक्टेड होते हैं, okay. Then this is connected to the ureter as you have seen in the structure, and then this ureter opens in the urinary bladder and from there the urethra, okay. So this is the structure of kidney, okay. Now these structures they are known as nephron, और ये जो हैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स पूरे रीजन में प्रेजेंट रहते हैं। दैट मीन्स यू कैन से मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द किडनी। नाउ हाउ दिस नेफ्रॉन लुक, एज यू कैन सी इन द फिगर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ओके। नाउ दिस इज द this circular structure, this is known as Bowman's capsule, इसको हम बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल। और इसके अंदर जो है नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। नाउ दिस बाउमन्स कैप्सूल इट लीड्स टू अ स्मॉल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन कहलाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके। देन दिस इज़ द लूप ऑफ हेनले, ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ये कहलाता है डिसेंडिंग लूप क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, और ये कहलाता है असेंडिंग लूप क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है। देन अगेन ये कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये दूर है इसलिए इसको डिस्टल बोलते हैं और इसको प्रॉक्सिमल। नाउ दिस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इट ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट, ये डक्ट होती है और ये डक्ट जो है फिर यूरेटर से अटैच रहती है, और यूरेटर फाइनली यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा, और इस तरह जो है यूरिन का पैसेज जो है होता है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन यू कैन से, ओके। सो दिस इज़ हाउ नेफ्रॉन्स लुक। नाउ वील बी स्टडिंग द नेक्स्ट वन, ओके। सो नेफ्रॉन की अगर हम बात करें, सो नेफ्रॉन जो है दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, इनको फंक्शनल यूनिट कहा जाता है बिकॉज दे ओनली हेल्प्स इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, एंड दे आर composed ऑफ टैंगल्ड मास ऑफ ट्यूब्स एंड फिल्टरिंग पार्ट कॉल्ड ग्लोमेरुलस। दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ग्लोमेरुलस जो है नेटवर्क होता है, जाल होता है, बहुत सारी कैपिलरीज इसमें प्रेजेंट होती हैं जो कि फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, okay. So glomerulus is a network of blood capillaries. Now arteries which takes blood to the glomerulus. Now arteries जो है, renal artery जो है, that I have told you wrong in the beginning, renal artery जो है it brings the blood, it brings the blood to the you can say kidney, okay, for this filtration. So it which takes the blood to the glomerulus, ये artery जो है जो ग्लोमेरुलस में ब्लड लेके आती है फॉर फिल्ट्रेशन उसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल, ओके। और जो ले जाती है उसको हम बोलेंगे इफरेंट आर्टियोल, ठीक है। जो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन के बाद ले जाएगी दैट इज़ नोन एज इफरेंट आर्टियोल। तो दो होती हैं, एक होता है एफरेंट और एक होता है इफरेंट, EFFERENT, इफरेंट आर्टियोल। नाउ ग्लोमेरुलस जो है इट इज़ इनक्लोज्ड इन अ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल, ओके। दैट सर्कुलर कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, और यही कैप्सूल इट एक्सटेंड इनटू फाइन ट्यूब्स विच इज़ हाईली कॉइल्ड। दैट आई हैव ऑलरेडी शोन यू, जो फाइन ट्यूब्स होती हैं दैट इज़ योर distal convoluted tubule, then your loop of Henle and then your proximal convoluted tubule. तो ये जो है ये जो कैप्सूल होता है वो आगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, हाईली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में एक्सटेंड करता है, एंड दीज ट्यूब्स दे फाइनली कनेक्ट
टू द यूरेटर, वो यूरेटर से जुड़ी रहती हैं एंड दैट यूरिन इज कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर, ओके, एंड देन इट इज डिस्पोज्ड. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. Okay, now let's talk about the यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी. किस तरह यूरिन जो है किडनी में बनती है. सो यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी इट अकर्स इन 3 स्टेप्स. 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देन ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड द लास्ट इज tubular reabsorption, and the last is secretion. Now this formation of urine it completes in these 3 steps. Now first पहले बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. तो एज द नेम सजेस्ट ये कहाँ होगा, ग्लोमेरुलस में ही होगा फिल्ट्रेशन. सो ऑल द नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड्स, दे ऑल आर फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बाउमन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन. ये सब फिल्टर हो जाते हैं, ओके, इनटू द बाउमन्स कैप्सूल. ओके, देन आगे फिर आते हैं हम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में. तो ये ट्यूब वर्ड से बना, दैट मीन्स इसमें जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज़ योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये तीनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं रीअब्जॉर्प्शन. मीन्स जो भी चीज़ें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में यूज़फुल चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हुई हैं सपोज़, ठीक है, बिकॉज वो बहुत ही फाइन कैपिलरीज होती हैं, वो आगे चल के ट्यूबुलर पार्ट में फिर से रीएब्जॉर्ब होती हैं. सो ऑल द यूज़फुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट दे आर रीएब्जॉर्ब्ड बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन. ठीक है, तो ये फिर से ये रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं. नाउ द लास्ट इज़ योर सिक्रीशन. नाउ सिक्रीशन में क्या होता है, द एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट, ओके, which are present in the tubule. Okay, so these are the extra water, salts are secreted into the tubules which open into the collecting duct and then into the ureter. फिर जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है, सॉल्ट्स होता है, वो सब कुछ रिमूव हो जाता है एंड दैट इज़ कलेक्टेड इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड फाइनली टू द यूरेटर. सो दिस हाउ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन अकर इन kidney. Now next very important topic, that is hemodialysis. Hemodialysis क्या होता है? Okay, so it is a process of purifying the blood. Okay, ये भी process है purifying the blood. Okay, by an artificial kidney. What happens sometimes our kidney does not function properly. Kidney हमारी अच्छे से functions नहीं कर पाती हैं, तो उस समय क्या होता है, डायलिसिस किया जाता है. आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू ब्लड को फिल्टर किया जाता है. ब्लड को पहले बॉडी से एक ट्यूब के थ्रू वी टेक आउट द ब्लड, देन इट इज़ पास थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है यूज़फुल चीज़ों का, और जो वेस्ट होता है वो एक अलग हम कह सकते हैं जार में कलेक्ट होता जाता है. और जो प्योर ब्लड आफ्टर फिल्ट्रेशन इट इज़ रीसेंड, वो फिर से सेंड हो जाता है हमारी बॉडी में. ओके, दैट यू कैन सी इन द फिगर हाउ इट अकर्स. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस टेकिंग प्लेस. नाउ यू कैन सी अ पेशेंट इज़ देयर एंड this is the part from this tube is connected to the body part from where blood is taking out. This blood is going and this is the network of semi permeable membrane जहाँ पे filtration होता है, और यहाँ पे जो है fresh blood, pure blood collect होगा जो कि हमारे बॉडी में फिर से रीसेंड कर दिया जाता है. और इसके थ्रू जो है इस जार में जो भी यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, जिसमें यूरिया होगा, ज़्यादा एक्सेस सॉल्ट, वाटर, जो कुछ भी है हार्मफुल चीज़ें, वो इसमें कलेक्ट हो जाएंगी. ओके, सो इन दिस वे डायलिसिस टेक प्लेस इन आवर बॉडी. So it is usually this process is applied when the person's kidney failed. Okay, in case of kidney failure, so this hemodialysis is done. Okay, now let's talk about the excretion in different animals. अगर हम बात करें तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन के. इफ़ यू टॉक अबाउट एमीबा और एनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म,
ठीक है. In this the waste that is removed by diffusion process through the cell membrane, and जो nitrogenous waste होता है that is removed by contractile vacuole. Okay, so because as you all know single celled organism होते हैं, इनमें कोई भी well defined organ नहीं present होता है, एक ही सेल है जो सारे फंक्शंस करता है. सो डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो वेस्ट को रिमूव करती है. नाउ अर्थवॉर्म, इफ़ यू टॉक अबाउट अर्थवॉर्म में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रीडिया. ठीक है, ये इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द स्किन, जो मॉइस्ट स्किन होती है वो भी एक्सक्रीशन का काम करती है. Then in insects, Malpighian tubules are present which serves as a purpose of excretory organs. So these are the few animals where these are the excretory organs present. Now let's talk about excretion in plants. As you all know, plants, they have a very simple body organization and no well defined excretory organs are present in plants, but still plant also excrete many substances. So the main excretory products in plants are, that is carbon dioxide, water and oxygen. So these are excreted through the stomata in the leaves and also through the lenticels. ये दोनों पार्ट से excretion होता है. Now as you all know, oxygen जो है it is produced as a byproduct in photosynthesis. Then carbon dioxide is produced in respiration. Okay, then in water is also produced through transpiration. Okay, so water जो है, water is removed in the form of वाटर वेपर थ्रू ट्रांसपिरेशन. तो ये इसके 3 मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स में. नाउ प्लांट्स, इसके अलावा प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट मैनी थिंग्स लाइक सम वाटर. प्लांट्स जो है इट एक्सक्रीट सम वाटर इन द सॉइल, सॉइल में ही कुछ वाटर एक्सक्रीट करता है थ्रू रूट्स. ओके, देन प्लांट्स ऑल्सो कंटेन गम्स और रेजन्स, स्पेशली इन द ओल्ड जाइलम, जो बहुत बड़े बड़े टॉल ट्रीज़ होते हैं जहाँ पे बार्क बहुत पुरानी होती है. सो वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है. सो वहाँ पे आपको गम्स और रेजन्स भी मिलते हैं एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. Now one more excretory product is present in plant and that is known as raphides. रेफाइड्स भी होते हैं, ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू प्रोड्यूस होता है. और रेफाइड्स होते क्या हैं, ये निडल शेप्ड क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के, निडल शेप के होते हैं. ओके, एंड दे आर प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ कोलोकेशिया एंड स्टेम ऑफ जिमीकंद. सो ये दोनों वेजिटेबल्स हैं. कोलोकेशिया दैट इज़ बंडा उसको बोलते हैं, एंड जिमीकंद है जिस कोलोकेशिया की लीफ में और जिमीकंद के स्टेम में ये प्रेजेंट होते हैं रेफाइड्स. ओके, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस प्लांट ऑल्सो स्टोर सम वेस्ट इन द बॉडी पार्ट्स लाइक लीफ, बार्क, फ्रूट. कुछ वेस्ट इनमें भी स्टोर रहता है एंड दिस इज़ कंटिन्यूसली रिमूव्ड, लाइक लीफ फॉल होता रहता है. ठीक है, जब लीफ फॉल होता है तो जो भी वेस्ट प्रेजेंट होता है दैट इज़ रिमूव्ड. ओके, फ्रूट्स भी जब फ्रूट्स भी हैं जब मैच्योर हो जाते हैं दे फॉल फ्रॉम द ट्री. ओके, सो इन दिस वे द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट्स ऑल्सो. सो देन पीलिंग ऑफ बार्क जो है वो पील मीन्स इट कैन यू कैन ईजिली टेक आउट द बार्क from the tall tree or old tree. So that is also a sort of excretory product which is removed from the plants. So this is all about your excretion. Okay, with this we have completed the last process, that is excretion. Hope you all have understood everything, and now we will in next lecture we will start with the new chapter. Okay, so till then, bye.